Today we have got together for another Elder Hour in India's first ever Elders First Festival, which is a 50-day long festival in which various events take place. आप सबको मालूम है ट्यूसडे टू फ्राइडे हम ये सैटरडे हम ये इवेंट्स करते हैं. ट्यूसडे बीइंग इंस्पायरिंग ट्यूसडे, वेडनेसडे बीइंग लर्निंग वेडनेसडे, गेमिंग थर्सडे, फन फ्राइडे एंड सैटरडे स्पेशल्स. सो ये एल्डर्स फर्स्ट फेस्टिवल हमने इसलिए शुरू किया ताकि ऑल द किड्स कैन कॉल अप देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम between 7:25 to 8:25 because our lives are so busy. We generally don't call up the parents. In fact, if I take my own example, a lot of times if I'm busy with some activity in office, if my mother calls up, I tell her कि मम्मा मैं आपको 10 मिनट में फोन करती हूँ और 10 मिनट कभी वापस नहीं आते. So I would urge all the kids to dedicate this 1 hour for the parents, sit with them, have a bonding strengthened with them, watch this program together. Let it be virtual. कोई problem नहीं अगर आप अलग-अलग देशों में अलग-अलग places पे रह रहे हैं. But most important is that have a collective session. Talk to each other, pick up the phone. The kids should pick up the phone, call up their parents right now so that the bond gets strengthened. And we at Emoha firmly believe that you must take care of the ones who've always taken care of you. So Elders First Festival will be continuing till 21st August, which is being the World Senior Citizen Day. And as I mentioned, Wednesdays are always the Learning Wednesdays. आज हमारा health session है. Very well-renowned Dr. Shamshed Dwivedi and Dr. Grewal ke saath. And the topic for today is emotional wellness in elders. Old age itself comes up with a lot of challenges. And elder depression has been the most important healthcare challenge that India is facing today. And with pandemic, itna zyada badh gaya hai, this depression has increased to such a level that it becomes very difficult to handle. In fact, post-COVID depression भी इतना बड़ा challenge बन चुका है that it is very, very difficult to handle at all the ages, leave alone elderly. And going on to the figures, 21.9% of elders in India suffer from depression when compared to the world over of about 4 to 16%. So हमारा जो in fact we always feel कि India socially बहुत ही active हमारी society है. But still our elders are absolutely lonely, and with this pandemic coming in तो बहुत ही ज़्यादा lonely feel करते हैं, lonely हो गए हैं हमारे elders. So this is one time where we can bond with our parents, where we must dedicate this 1 hour to the parents, 7:25 to 8:25 p.m. every single day till 21st August. By that time, I think all of us will get into the rhythm of calling up our parents between this 1 hour's time and spending some quality time with our parents. So coming on to the topic for today, we have amongst us very well-known, as I mentioned, Dr. Grewal and Dr. Dwivedi, who would be shortly joining us. And welcome, Dr. Grewal. Welcome, Dr. Dwivedi will be joining us shortly. We are all familiar with Dr. Grewal. He needs no introduction. All of us here on our platform, most of us would know Dr. Grewal. He takes our sessions very often and he educates all of us very well on certain healthcare aspects and other aspects pertaining to elder care. And Dr. Grewal works, he's a senior consultant with Fortis Escorts, Okhla. He's been working in this elder care space since past many decades now. And he's a firm believer that elder care is not only about healthcare, it is much, much beyond that. Healthcare is a part of elder care, definitely. But what he always mentions is that it is just the quality of life that we need to improve for an elder, rather than just thinking about health, medical issues. And there is much, much more quality of life. If improved of an elder, everything falls into place. Even the medical issues become lesser, health becomes better and better. And that's how this particular topic of mental wellness becomes very, very important today. Coming on to Dr. Shamshed Dwivedi, he's a very well-known neurologist in India. He's also practiced in neurology, clinical neurology, since past 3 decades. And currently, he's the chairman, neurosciences and director, clinical services at Wimhans Nayati.
He has, to his credit, the largest number of clinical trials in India on neurological disorders. He is a recipient of Times of India Healthcare Achievers Award as a Best Neurologist in 2018. He's been working very closely with the government as well and has recommended many improvements to be incorporated in the healthcare system of India. So here we have two very special guests to start with Dr. Grewal. We will be discussing more on mental wellness. So welcome, Dr. Grewal. Over to you. Let me check with Dr. Shamsher. Thank you, Dr. Kahlon. Thank you very much. And good evening to all of you. नमस्कार. आज हम इमोशनल वेलनेस के बारे में बात कर रहे हैं. जब हम इमोशनल वेलनेस कहें तो आप सबके सोच में सबसे पहले क्या आता होगा? इमोशनल का मतलब परेशान होना, इमोशनल का मतलब मैं उदास हो जाते हैं, इमोशनल का मतलब बच्चे याद आते हैं, इमोशनल का मतलब 40 साल पहले मैं गया था चांदनी चौक में छोले भटूरे खाए थे, या इमोशनल का मतलब करोल बाग में जाके रोशन की कुल्फी खाई थी. तो इमोशनल को यादों से जोड़ा जाता है अक्सर. अब उसको कहना कि इमोशनल वेलनेस, तो यादों को वेल रखने में क्या मुश्किल हो? यहां से सवाल शुरू होता है. सवाल यहां से शुरू होता है कि इमोशनल हेल्थ क्या होगा. सो इमोशन, पहले हम समझे इमोशन क्या है. आफ्टर ऑल इंसान के इमोशन किसे कहते हैं? तो इमोशन आप सबको इतना समझा दें कि हमारे सोच के बारे में आता है. आपने 30 साल पहले कोई रोशन की कुल्फी खाई हो और आज आपको पुराना कोई दोस्त वही याद आ जाए, मिले जो आपके साथ करोलबाग में जिसने कुल्फी खाई थी, तो आप कहेंगे यार वो उस दिन कुल्फी खाई थी, बड़े मजेदार थी. तो आपको याद आया कि वो कुल्फी खाई थी और उसका स्वाद ऐसे था जैसे मुंह में अभी स्वाद आ गया. तो एक याद है उस कुल्फी के स्वाद की 30 साल के बाद, हालांकि अभी कहीं कुल्फी नहीं है. आफ्टर ऑल आपके दिमाग में कहीं वो स्वाद था, तभी तो मुंह में पानी आया. तो हमारे भाव जो हैं वो हमारे दिमाग के अंदर स्टोर होते हैं, उनका भी ख्याल रखना होता है. और उनको कैसे उसमें खाद डालनी है, कितना पानी डालना है, उसका भी डॉक्टर है. तो आपके इमोशन का भी एक डॉक्टर है, जैसे आपके हड्डी का डॉक्टर है. आप सोचोगे हमारे सोच का डॉक्टर क्या करेगा? मेरा सोच तो मेरा सोच है, और सोच भी बीमार होती है. तो उस सोच के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं. और हमारे साथ एक ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो खुद बहुत सोचते हैं. और न्यूरोलॉजिस्ट कहा यह जाता है कि डॉक्टर अपना इलाज ना करे. तो न्यूरोलॉजिस्ट जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे सिर दर्द है, वो कहते हैं आप लोग होते ही ऐसे हो, आप लोगों को सिर दर्द का इलाज करते करते आपको भी सिर दर्दी हो गई. तो वो भी एक सोच है. तो आई इनवाइट डॉक्टर शमशेर द्विवेदी, द चेयरमैन एट विमेन्स हॉस्पिटल, जो आपको पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आफ्टर ऑल इमोशनल वेलनेस क्यों करनी चाहिए और कहां से शुरू होती है. वेलकम डॉक्टर द्विवेदी. यू आर म्यूटेड प्लीज. डॉक्टर द्विवेदी, आपकी आवाज अभी नहीं. Am I audible? Yeah. So thanks, Dr. Grewal, for your kind introduction, and Mrs. Manpreet to give me this opportunity to interact with the cream of the society.
elderly, I feel, are at the top of the society, and they are the cream of the society, because the amount of experience that they have, I think that is worth gold or maybe diamond. And let me tell you, when you can get knowledge from books, you can get so much of information from books, but wisdom you can only get when you sit with elderly. You can't get wisdom in books, because application of that knowledge in daily living, you can always know from people who have traveled those paths. And when and let me tell you, right since my early days, whenever I used to sit with my friends, used to say, यार तू बुड्ढों के साथ ही बैठा रहता है, तेरे को बुड्ढों के साथ क्या मजा आता है? And let me tell you, the most, I would say, as far as the value addition is concerned, the maximum value addition happens when you are sitting with elderly in your knowledge and information and wisdom. अब मैंने ये जो कहा कि जो बुजुर्ग हैं वो हमारा जो नॉलेज बेस है उसकी धरोहर है, वो उन्हीं के पास। लेकिन पहले उतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि उस धरोहर को हम जानने की कोशिश नहीं करते, उस नॉलेज को जानने की कोशिश नहीं करते, और कई बार जिंदगी की दौड़ में हम इतने मसरूफ हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं, उनको अकेला छोड़ देते हैं। न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शायद उन बुजुर्गों से जो हम पा सकते हैं उस पाने के लिए अगर हम उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें, इनफैक्ट मैं बताऊं, अगर आप बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारते हैं तो आप उनको जितना देते हैं उससे ज्यादा आप उनसे पाते हैं। लेकिन इस चीज को ना समझते हुए लोग समझते हैं कि अगर मैं शाम को भी बैठ के अपना कुछ ऑफिस का काम कर लूं, कुछ पैसे और कमा लूं, कुछ शेयर मार्केट में टाइम लगा लूं, बच्चे अपने व्हाट्सएप पे चैट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी जो निधि है, जो एक ट्रेजर है, उसको खो रहे हैं। लेकिन बुजुर्गों को मैं आज जो टॉपिक है उसमें इमोशनल वेलबींग, बुजुर्गों का मेंटल वेलबींग, बुजुर्गों का वो कैसे मेंटेन किया जा सकता है और कैसे हम उनकी इसको मैं ओल्ड एज कहना भी पसंद नहीं करता हूँ, ना जेरियाट्रिक वर्ड यूज करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग जो है 125 साल तक जी सकता है। अगर जो ऑप्टिमम लाइफ है ह्यूमन बीइंग की वो 125 साल तक हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मॉडर्न रिसर्च कह रहा है। अब वो 125 साल तक जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा जो एक उम्र के साथ, और ये मैं कहता हूँ ये जो प्लानिंग होनी चाहिए 45-50 के बाद ही अगर आपने काम शुरू कर दिया इस पे, तो आप 100 साल तक तो जिएंगे ही जिएंगे और हेल्दी जिएंगे। इसमें जो जैसा डॉक्टर ग्रेवाल कह रहे थे, लोनलीनेस जो है वो एक तो आदमी को, ये शब्द जो है लोनली, अकेलापन, ये आदमी को बड़ा खाता है, बड़ा दुखी करता है अकेलापन। लेकिन मैं आपको जान के आश्चर्य होगा कि अकेलापन सिर्फ मन नहीं करता है, शरीर को अंदर से खाता है। जैसे दीमक चाटता है शरीर को, आपके हार्ट को, आपकी आर्टरीज को, आपके ब्रेन को, इन सबों को चाटता है। ये जो भी मैं बात आज कहूंगा ये सिर्फ कहीं सुनी बात नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन बातें कहूंगा। जहां मुझे लगेगा कि ये मैं अपना कुछ ज्ञान दे रहा हूं, मैं अलग से बता दूंगा कि ये मेरा ज्ञान, लेकिन जो जितना बोलूंगा वो सब साइंटिफिकली प्रूवन ज्ञान। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने की है वो ये कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मतलब आपका ब्लड प्रेशर, आपके हार्ट का हेल्थ, खून की नलियों में जो ब्लॉकेजेस आ जाती हैं वो बीमारियां, इन सबों को पाया गया है कि जो लोनली रहते हैं उनमें ये ज्यादा रहता है। अब इसके अलावा
जो एक बहुत ही भयानक शब्द है डिमेंशिया, जहां आदमी का को स्मृति दोष हो जाता है, धीरे धीरे आदमी की याददाश्त खत्म होने लगती है, वो भी जो लोनली रहते हैं उनमें ज्यादा होता है। इसलिए होता क्या है कि जितने साल आप एक्टिव काम में जा रहे हैं, आप कम से कम 8-10 घंटे के लिए अपने कलीग्स के साथ काम कर रहे होते हैं। चूंकि आप अपने कलीग्स के साथ काम कर रहे होते हैं, उसके बाद थक के आते हैं, खा पी के सो जाते हैं, तो आपको लोनलीनेस का स्कोप नहीं रहता। इवन जो लोग अकेले घर पे रह रहे हैं उनको भी लोनलीनेस नहीं आती, क्योंकि पूरा दिन तो वो 10-12 घंटे लोगों के साथ घूम रहे होते हैं, तो उनको लोनलीनेस वाला जो इम्पैक्ट है वो नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप अपने एक्टिव सर्विस से रिलीव होने लगते हो, एक्टिव सर्विस से बाहर निकलने लगते हो, वैसे ही लोनली ज्यादा टाइम आपको मिलने लगता है। लोग कहते हैं आई विल गेट टाइम टू बी विथ माई सेल्फ। ये जो टू बी विथ माई सेल्फ है ना, ये कुछ हद तक तो 1 घंटा 2 घंटा रोज तो ठीक है, लेकिन पूरे दिन यू आर विथ योर सेल्फ, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सोशल कम्युनिकेशन, आपस में मिलना जुलना, हंसना बोलना, ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। ये एक बहुत हम लोग पढ़ते थे सोशियोलॉजी में कि मैन इज ए सोशल एनिमल। ये हमारी खुराक है। सोशल इंटरेक्शन के बिना, एक रशियन ऑथर थे, उन्होंने कहा था कि 2 ही लोग जी सकते हैं, देवता या दानव, मनुष्य तो नहीं जी सकता। आप या तो देवता हो या दानव हो, तभी आप सोशल इंटरेक्शन के बिना हेल्दी रह सकते हैं। अगर आप मनुष्य हैं तो आपको सोशल इंटरेक्शन उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए ब्रेकफास्ट जरूरी है। तो जो समय आप सोशल इंटरेक्शन में बिताते हैं, वो एक तरह से आप ये मत समझिए कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, दैट इज एक्चुअली इसेंशियल फॉर योर नॉट जस्ट मेंटल वेलबींग। डिमेंशिया तो रोकेगा ही, डिप्रेशन तो रोकेगा ही, आपकी फिजिकल वेलबींग के लिए भी जरूरी है। दूसरा कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं जब जिस समय बहुत ही एक्टिव ईयर्स में होते हैं, अच्छा मैं 60 का हो जाऊंगा या 65 का एक टारगेट रखते हैं, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। ये जो रिटायरमेंट वर्ड है ना, यहीं से लोनलीनेस शुरू होता है। रिटायरमेंट जो है वो बीमारी की जड़। जिस दिन आदमी रिटायर होता है, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होता है, वो सोचता है कि अब तो मैं आराम करने के लिए, मुझे आराम करने की छूट मिल गई। इट इज नॉट जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पैसे की बात नहीं है। रिटायरमेंट के साथ जो आप सोशली डीएक्टिवेट हो जाते हो, अलग थलग पड़ जाते हो, लोगों से मिलना बंद कर देते हो, दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं और अपने माइंड को एक्टिव रखना बंद कर देते हैं, उससे जो डिजेनरेटिव चेंजेस बॉडी में होते हैं, वो आदमी की लाइफ कम से कम 5 से 10 साल कम कर देते हैं। इसलिए मैं हमेशा, कभी कभी मैं जो पीएसयू वगैरह में रिटायर्ड हो रहे होते हैं एम्प्लॉइज, उनको मैं जब एड्रेस करता हूं तो मैं कहता हूं रिटायरमेंट के समय कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही आप रिटायर करें, नेक्स्ट डे आप कोई दूसरा काम ढूंढ लें। वो काम जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल गेन हो उसमें, लेकिन 9 to 5 का रूटीन, जो मैं सुबह उठता हूँ, उठ करके तैयार होता हूँ, तैयार होके 9-10 बजे तक ऑफिस जाता हूँ, फिर शाम को 5-7 बजे वापस लौटता हूँ, वो आपका 8 जो रूटीन होना चाहिए वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट लिव विदाउट एनी रूटीन कि हम रैंडम रह रहे हैं रोज। वो रूटीन जो है वो आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बनाए रखता है। वो हो सकता है आप आरडब्ल्यूए में काम कर रहे हैं या मंदिर के किसी चैरिटेबल डिस्पेंसरी में कंसल्टेशन दे रहे हैं या किसी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका 9 to 5 इन्वॉल्वमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके अपने हेल्थ के लिए। नाउ एल्डरलीज में और यंग एज में अगर लोनलीनेस और उसकी वजह से कोई डिप्रेशन उस इंसान को होता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है
कि अगर कोई यंग आदमी डिप्रेस होता है, उसके फैमिली मेंबर्स तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि कुछ दिन से देखिए ये कुछ काम नहीं कर रहा है, ऑफिस जाना बंद कर दिया, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वाइफ परेशान हो जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। इन केस ऑफ एल्डरली, वो बेचारा एक कोने में बैठा रहता है बुजुर्ग, लोग सोचते हैं तो एज उम्र का तकाजा है, उसको बैठे रहने दो, वो आइडेंटिफाई ही नहीं होता। Identification of depression in elderly is the biggest challenge because family members feel that this is a part of normal aging. और उस डिप्रेशन जो है जब लंबे समय तक रहता है तो ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर, हार्ट डिजीजेस, लैक ऑफ स्लीप, पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, ये सब कुछ हो जाता है और इस सब को नॉर्मल एजिंग का पार्ट मान लिया जाता है। तो इसलिए ये जो नया एक चलन है RWS का, RWS में ज्यादातर जो लोग होते हैं मेंबर्स, वो एक सर्टेन एज के बियॉन्ड के लोग होते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो भी RWS से हैं उनका एक इसेंशियल काम ये होना चाहिए कि अपने एरिया के जो एल्डरलीज हैं उनसे, जो कुछ तो खुद ही आ जाते हैं RW मीटिंग्स में, खुद ही सोशलाइज करते हैं, लेकिन एक बड़ा ग्रुप होता है एल्डरलीज का जो सोशलाइज नहीं करता, घर में बैठा हुआ है। उनसे जाके मिलना, देखना कि वो डिप्रेस्ड हैं कि नहीं, अगर डिप्रेस्ड हैं तो उनको हेल्प करना, ये RWA का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कई बार जब आपके पास कोई एल्डरली रह रहा होता है, आप शायद उतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं जितना सडनली कोई आदमी आता है, देखता है अरे ये आदमी तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, कल तक तो ये साहब दिखते थे मिस्टर लूथरा, तो वो बड़ा एक्टिव हुआ करते थे, आज मिस्टर लूथरा कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। दे विल पिक अप द, और जो रोज रहता है उसको लगता है तो ग्रेजुअली धीरे 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 एज कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 3-4 महीने बाद सडनली कुछ फ्रेंड जो पुराने वो मिले, उनको नजर आएगा। और उस डिप्रेशन को ट्रीट करना जरूरी है। उस डिप्रेशन की ट्रीटमेंट का हिस्सा सिर्फ दवाइयां नहीं है, दवाइयां भी हैं और जरूरी है, लेकिन उसके अलावा उनको एक सोशलाइज करने का, लोनलीनेस, उनके लोनलीनेस को ब्रेक करने, कई बार घर में रहते हुए भी आदमी लोनली रहता है क्योंकि जितने बाकी के मेंबर्स हैं वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो जो चीज है वो आदमी को लोनलीनेस, डिप्रेशन और उसके साथ फिजिकल और मेंटल डिजीजेस दोनों होने लगती है। तीसरी चीज जो है वो लैक ऑफ स्लीप। एल्डरलीज को आर मोर प्रोन टू लैक ऑफ स्लीप। वजह, एक तो उम्र के साथ प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है, रात को बार बार यूरिनेट करने के लिए जाने की जरूरत, वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है, उससे स्लीप डिस्टर्ब होती है। कहीं किसी को आर्थराइटिस है, उसका पेन जो है वो रात को नींद डिस्टर्ब कर देता है। ये जो स्लीप डेप्रिवेशन होता है, ये स्लीप डेप्रिवेशन लोग समझते हैं अरे थोड़ी नींद ही तो डिस्टर्ब हो रही है, कोई बड़ी, ये बहुत बड़ी बीमारी है स्लीप डेप्रिवेशन। आप पाएंगे कि जो लोग वेल रेस्टेड हैं, जिनकी नींद पूरी अच्छी तरह हुई है, उनका शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेटर है देन। अब इधर शुगर की दवा आप बढ़ाते जा रहे हैं, आप आए फिजिशियन के पास, अरे डायबिटीज है चलो दवा बढ़ा दी। जस्ट अगर उसको ठीक से रात को नींद मिलने लगेगी तो दोनों ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों बेटर कंट्रोल में आ जाएंगे। और एल्डरलीज आर मोर प्रोन, एंड एल्डरलीज को खुद भी अगर नींद डिस्टर्ब हो रही है तो अपने फिजिशियन को जाके जरूर बताना है, और फिजिशियन को जरूर ये क्वेश्चन पूछना चाहिए आपकी नींद कैसी है। उम्र के साथ नींद में कमी आती है, स्लीप जो है उसकी रिक्वायरमेंट एज के साथ कम होती जाती है। 6 घंटे 7 घंटे नींद काफी, 6 घंटे काफी होती है, जरूरी नहीं कि 8 घंटे सोए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो कि हर एल्डरली को खुद से पूछना चाहिए और डॉक्टर को भी पूछना चाहिए कि क्या जब आप सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश फील करते हैं? अगर आप फ्रेश फील करते हैं मतलब आपकी नींद का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। अगर आप उठते हैं और आप फ्रेश नहीं फील करते हैं, दिन भर स्लीपी फील करते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड अगेन दोज हु हैव लैक ऑफ स्लीप, उनकी जो फिजिकल इलनेसेस है जिनका जिक्र अभी मैंने किया, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, डिमेंशिया, ये सारी, इनफैक्ट
those who sleep less, there again around 7 years उनके लाइफ में कटौती हो जाती है, as compared to another group of people who are having a good quality of sleep. So sleep is as important as maybe a vitamin pill, and maybe more important than a vitamin pill. हम विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम लेते हैं, वो जरूरी हो सकते हैं, लेकिन नींद भी उतनी ही या उससे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो चीज आती है लॉस ऑफ मेमोरी। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अरे इनको तो ये सठिया गया है बुढ़ा। क्यों सठिया गया है? क्योंकि इसको याद नहीं रहता कुछ। इसका मतलब 60 साल के बाद लॉस ऑफ मेमोरी को हमने ट्रेडिशनली वी हैव टेकन इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे सारे एवरेज पॉलिटिशियन जो है वो 60 से ऊपर के हैं, जितने एक्टिव पॉलिटिशियन है वो 60 से ऊपर के हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, सारे ऊंचे ओहदे 60 से ऊपर वालों ने कैप्चर किए हुए हैं, और वो 6 घंटे सो करके और दिन भर काम भी कर लेते हैं, फॉरेन अफेयर से लेके होम अफेयर्स तक सब देख लेते हैं। कहने का ही मतलब एज इज नो बार। ये मान लेना कि 60 के बाद मेमोरी लॉस होना जरूरी है और होगा ही, ये गलत है। ये जाना पाया गया है कि जो लोग सही खाते हैं, सही टाइम से खाते हैं, सही चीजें खाते हैं, एडिक्वेट सोते हैं, सोशली इंटरेक्ट करते हैं, उनमें मेमोरी लॉस कम होता है एज कंपेयर टू जो इसका उल्टा करते हैं। तो सही टाइम पे सही चीज खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सही टाइम पे सोना, मॉडरेशन में रहना, टोबैको, अल्कोहल को अवॉइड करना, ये सारी चीजें जो फॉलो करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल, रोज एक्सरसाइज करना, ये जो करेंगे उनकी मेमोरी जो है वो लंबे समय तक उनका साथ देगी और अच्छी तरह साथ देगी, और उतना ही साथ देगी जितना यंग आदमी का साथ देती है। तो अब इसमें क्या है, अगेन फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स सोचते हैं अरे एज के साथ तो इनको मेमोरी लॉस जो हो रही है उसको कुछ ध्यान नहीं देना, वो गलत। अगर किसी भी एज में एक इंसान को लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है, दैट इज एबनॉर्मल। लॉस ऑफ मेमोरी एट एनी एज इज एबनॉर्मल। उसको तुरंत किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके उसका उचित इलाज होना चाहिए। शुरू में, इसके पहले कि आदमी फुल फ्लेजेड डिमेंशिया डेवलप होता है, एक स्टेज आता है जिसमें कहते हैं माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, MCI, माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। उस समय वो पूरी तरह से डिमेंशिया में नहीं घुस गया है, हल्का कुछ उसको याददाश्त में परेशानी हो रही है। जैसे आपने उससे पूछा, अपने दोस्त से पूछा, या अपने दादाजी से पूछा, अपने फादर से पूछा कि कल आपने डिनर में क्या किया था, क्या खाया था। अगर उस डिनर का मेन्यू वो मिस कर रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, थोड़ा वक्त लेके भी नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका मतलब माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट शुरू हो गया। या 4 चीजें उन्होंने खाई थी, उसमें से 2 चीज बता पा रहे हैं, 2 नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब समय आ गया है कि एक न्यूरोलॉजी कंसल्ट होनी चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है उस हिसाब से फर्दर डिटोरिएशन रोकने के लिए और इंप्रूवमेंट के लिए आप दवा मिलनी चाहिए, ना कि इसको उम्र का तकाजा मान के छोड़ देना चाहिए। जो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर में चला जाऊंगा। एक चीज और इम्पोर्टेंट जो है वो उम्र के साथ लोगों की वॉक में एक चेंज आता है। वॉक कैसी हो जाती है, शॉर्ट स्टेप हो जाती है, थोड़ा सा टेंटेटिव हो जाती है। टेंटेटिव मतलब आदमी संभल के चलने लगता है, शॉर्ट स्टेप्स चलने लगता है। क्यों? क्योंकि उम्र के साथ एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं पार्किंसन डिजीज। लेकिन पार्किंसन डिजीज हर इंसान को नहीं होती, लेकिन उम्र के साथ चूंकि ब्रेन में थोड़े चेंजेस होते हैं, तो आदमी की एक टेंडेंसी रहती है ऐसा वॉक एडॉप्ट करने की जहां पे वो छोटे स्टेप्स ले और संभल के चले कि जिससे गिर न जाए।
लेकिन ये जो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है या छोटे स्टेप्स आदमी लेने लगता है संभल के चलने के लिए, इसको अगर आप इम्प्रूव रखना चाहते हैं, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये प्रॉब्लम भी अगर बढ़ती है समय के साथ तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है आदमी की सोशल मोबिलिटी पे, आदमी के लोनलीनेस पे, आदमी के डिमेंशिया पे। और ये चीज आइडेंटिफाई अगर हो तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय अगेन रिमेनिंग मोर एक्टिव, वॉक किया, लोगों से मिले, बाहर घूमा, उससे आप लंबे समय तक अपने मोबिलिटी और इक्विलिब्रियम और बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे। अब जैसे मान लिया आप बहुत ही ज्यादा घबराए हुए, चलना नहीं चाहते हैं, घर में बैठे रहना चाहते हैं, तो आप इवनिंग में किसी के घर नहीं जाएंगे। पार्टी हो रही है, नहीं यार छोड़ो, कौन जाएगा, गिर जाएगा, पड़ जाएगा, चोट लग जाएगी। तो इसलिए फिजिकल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोनलीनेस के लिए आपको लोगों से मिलना होगा, मिलने के लिए घर से निकलना होगा, घर से निकलने के लिए फिजिकली फिट रहना होगा। इसलिए फिजिकल फिटनेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवॉइडिंग लोनलीनेस व्हिच कैन लीड टू सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। सो ये ब्रीफली मैं सिनेरियो देखता हूं अपनी डेली प्रैक्टिस में, जो मैंने शेयर किया। अब मैं डॉक्टर ग्रेवाल को और जो ऑडियंस है उनको जो भी उनके क्वेश्चंस हैं वो मैं डील करना। थैंक यू डॉक्टर द्विवेदी, बहुत सरल शब्दों में आपने हमारी न्यूरोलॉजी के बारे में बताया। मैं जो आज आपको ले जाना चाह रहा हूं जिस डायरेक्शन में, हमारी मेमोरी लॉस हो या हमको महसूस होना कम हो, सेंसेशन कम हो, उसके सबकी टेस्ट होते हैं। सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, टेस्टिंग हुआ। भाव, इमोशंस, मुझे लड्डू पसंद आया, उसने कहा कितना पसंद आया, बहुत पसंद आया। अब ये बहुत कैसे नापते हैं? किसी ने कहा मुझे बहुत गुस्सा आया, कितना गुस्सा आया, मतलब बहुत गुस्सा आया। मुझे याद है छोटे बच्चे को पूछते हैं कितना अच्छा लगा, वो कहता इतना अच्छा लगा। कहता इतना अच्छा लगा कि इतना अच्छा लगा, वो इतना अच्छा लगा। अब एक एल्डर को वो कहता है कि मुझे मेरे लड़के से ने बात की, मुझे बुरा लगा। अब मैं उल्टा के पूछूं आपको कितना बुरा लगा, कहता बहुत बुरा लगा। अब मैं कैसे अंदाजा लगाऊं कि ये कितना बहुत बुरा, कितना बुरा, कितना बहुत स्वाद, कितना स्वाद, बड़ा खट्टा। ये बहुत बड़ा भाव में आए, जब फीलिंग्स में आए, इमोशन में आए, तो उसको हम कैसे तोलते? तो एक बहुत सरल तरीका मैं बताता हूं। ये जितने भी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स या सेंसेशंस हैं, जैसे दर्द, सरदर्द, इमोशनल सैडनेस और हैप्पीनेस, इनको एसेस करने का एक बहुत सरल तरीका है जो कि हर इंसान खुद भी कर सकता है और डॉक्टर भी कर सकता है। या आप जब डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं उसको। हम ऑलवेज एक यूज करते हैं टर्म मेडिसिन में एनालॉग्स के, एनालॉग्स के। तो हम पूछते हैं मरीज से कि देखिए आपके जिंदगी का सबसे खुशी का मौका क्या था? कोई कहता है जब मेरा बेटा पैदा हुआ उस दिन मैं बड़ा सबसे ज्यादा खुश था जिंदगी में। तो हम कहते हैं कि उसको मान लीजिए 10। अब आप बताइए कि अगर वो 10 है तो आज की डेट में आपकी इमोशनल फीलिंग कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे खुशी का मौका उस इंसान का है उसको 10 दे दीजिए और फिर उससे पूछिए अब तुम कहाँ स्टैंड करते हो। इसको एनालॉग स्केल कहते हैं। और ये पेन में, हेडेक में, इमोशनल डिस्ट्रेस में, हर एक में आप पूछ सकते हैं और उससे एक आपको अंदाज हो जाता है कि कितनी सीवियर ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्या है। क्योंकि बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड या इमोशनली अनवेल आदमी या लोनली आदमी ना बहुत खतरा रहता है सुसाइड करने का। सो यू मस्ट, या सुसाइड अगर नहीं भी वो करेगा ना, ही विल गिव अप हिज बॉडी। ना शुगर देखेगा ना बीवी, अब मुझे जाना है। वो जो चीज है वो आप इस एनालॉग स्केल से असेस कर सकते हैं कि कितना वो दुखी है। मेरा ख्याल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू
कि आप बुखार होगा तो थर्मोमीटर नाप लेंगे, ब्लड प्रेशर होगा तो इससे नाप लेंगे। ये कहना मुझे कोविड से बहुत डर लगता है, कितना डर लगता है, बहुत डर लगता है, तो आप खुद अपने आप का तरीका अपनाइए कि मुझे पता कितना डर लगता है। एक दिन मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे मैं फिसल गया था और मैं ट्रेन के बिल्कुल नजदीक आ गया था। बाप रे, उस दिन तो बहुत डर लगा था। तो आप नापिए कि वो जो डर था और आज का डर कितना फर्क है। ये इसलिए जरूरी है कि भाव का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का देखभाल करना। अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप उदास हैं और अगर शुगर आपकी 100 आ गई तो लाइफ इज नॉट गुड फॉर यू। तो डॉक्टर द्विवेदी, आपने एक बहुत अच्छा एनालॉग स्केल, मेरे ख्याल आप सब लोग लिख लीजिए, मैं कैटलॉग में भी लिखूंगा कि कल को सब अपना अपना वो एक लम्हा देखेंगे जब बहुत खुश थे और एक लम्हा वो जब आप बहुत परेशान थे। ये दोनों स्केल आप सबको पता होना चाहिए ताकि अगले दिन आप किसी चीज से अगर दुखी हैं या खुश हैं तो उसको तोलिए। The way to look after your emotion is to compare your best point with your worst point. You will be comfortable जब आप उस दायरे में चले। If I come to know Dr. Dwivedi that मैं उतना दुखी नहीं हूं, मैं उतना परेशान नहीं हूं, लेकिन मैं परेशान हूं और उस परेशानी से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आज भूख नहीं लग रही, खाना खाने को मन नहीं है, मैं उतना परेशान नहीं हूं। So therefore, if I say that to you, is that a good sign? Is that a positive sign, or it will not help me? नहीं, अगर एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, That's right. द वर्ड इज अनकंफर्टेबल। Uncomfortable. एक है नानक दुखिया सब संसार, तो सब लोग ही दुखी हैं, किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को मुकम्मल जहां तो मिलता नहीं, तो उस दुख की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर वो आदमी परसिस्टेंटली एक सैडनेस में, That is what I was coming to. सैड फील कर रहा है और उसकी वजह से उसकी डेली रूटीन अफेक्ट हो रही है, दैट मीन्स दिस सिचुएशन नीड्स इंटरवेंशन। Like, तो सबसे पहले जरूरी ये होता है कि खास करके जब क्योंकि एल्डरली की बात हम छेड़ रहे हैं, हमें पहले ये देखना होता है, समझना होता है कि ये क्यों दुखी है, और इस क्यों का अगर जवाब मिल जाता है तो उस इंसान और उसके फैमिली से बात करके उस सिचुएशन को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो सिचुएशन चेंज नहीं होगी आप इसको डील नहीं कर पाएंगे। उसकी सोशल सिचुएशन, उसकी फैमिली सिचुएशन, विद इन द पॉसिबल सॉल्यूशन, जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो आप देते हैं। दिस इज नॉन मेडिकल इंटरवेंशन, इन नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। इसमें दवा हम नहीं दे रहे, दवाई के बगैर, दवाई के बगैर। लेकिन जब आप ये समझते हैं कि इस इंसान को कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, क्योंकि देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पेशेंट्स इन एल्डरली हु विल डेवलप डिप्रेशन व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू एनी रीजन, दैट इज, पहले उस चीज को हम लोग एंडोजेनस डिप्रेशन कहते थे, आज एंडोजेनस डिप्रेशन वर्ड नहीं यूज होता, प्लेन सिंपल डिप्रेशन वर्ड यूज होता है। अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांस नहीं है जो उनको सैड कर रहे हैं, तो वैसी सिचुएशन में उनको फार्माकोथेरेपी यानी दवाई देना जरूरी हो जाता है। जरूरी। मैं इस बात को पहले डॉक्टर द्विवेदी आगे लेके जाएं आप लोगों को समझाने के लिए। अब आप अमेरिका में, मेरे को ट्रंप बड़ा पसंद है, अब वो ट्रंप इलेक्शन हार गया और मैं डॉक्टर द्विवेदी को फोन करके बोलूं कि डॉक्टर द्विवेदी आज से मैंने खाना खाना बंद कर दिया क्योंकि ट्रंप हार गया, मैं बहुत उदास हूं, मैं रो रहा हूं कि ट्रंप हार गया, और मैं कह रहा हूं मैंने खाना खाना बंद कर दिया। इसको
किस लेवल की एबनॉर्मेलिटी, किस श्रेणी के एबनॉर्मेलिटी में आप डालेंगे? ये डेफिनेटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन आउट ऑफ रिएक्शन है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्शन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी के कोई नियर एंड डियर वन की डेथ हो जाती है, वी नो दैट देयर इज अ बेरीवमेंट रिएक्शन, वहां तो खाना वाना बंद करना समझ में आता है। और बेरीवमेंट रिएक्शन भी जो है वो 3 महीने तक रहता है, 3 महीने के बाद सब सेटल होता है। हाँ, उसको हम लोगों ने शास्त्रों में शमशान वैराग्य भी कहते हैं। शमशान में जाने पर वैराग्य आ जाता है जो 3 महीने में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी 3 महीने से ज्यादा इवन नियर एंड डियर वन के डेथ की वजह से भी अगर सैड चल रहा है तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट, ये जस्टिफिकेशन एल्डर्स में बहुत ज्यादा होती है। अरे वो तो मेरे चचेरा भाई था, अब वो चला गया, अब जिंदगी में क्या रहा? नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। आफ्टर ऑल आपकी जिंदगी है। अफसोस हुआ, जरूर हुआ, लेकिन उसके पीछे वो जो पुराना एक डायलॉग डॉक्टर द्विवेदी आता है, पिक्चरों में सुनते हैं, अरे मेरे तो जन्म जन्मांतर का साथ। मैं तो पति पत्नियों को भी यही कहता हूं कि ये बात कहने के लिए वो फिल्मी एक्ट्रेस को ना 50 लाख रुपए मिलते हैं। आपको ये डायलॉग देके पैसे नहीं, आपको तो खर्चने पड़ेंगे पैसे। सो बी केयरफुल। द 2 words डॉक्टर द्विवेदी हैज यूज्ड, वेरी केयरफुल वर्ड्स, नॉट प्रोपोर्शनेट। ना डॉक्टर द्विवेदी, आपने एक वर्ड यूज किया था वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन आई सेड अबाउट ट्रम्प, यू It is not in proportion to the event. It is not in proportion to the event. अगर वो जैसा इवेंट है उसके बराबर का आप अगर रिएक्शन नहीं करोगे तो वो एबनॉर्मल माना जाएगा। तो बहुत बारीक है दीवार, लेकिन अगर वो हो रहा है इसका मतलब ऐसे इंसान का इमोशनल हेल्थ जो है वो सही नहीं है। जो आज एम्फेसिस करना चाह रहे हैं हम दोनों कि आपके भाव भी बीमार होते हैं, और भाव बीमार करने का तरीका है ढूंढने का। और फिर भाव जब बीमार होते हैं तो एल्डर्स में बहुत मल्टीप्लाई कर जाते हैं, क्योंकि भाव बीमार होने से आप अकेलेपन में आ जाएंगे। अकेलेपन में जैसे डॉक्टर द्विवेदी ने कहा मिलना शुरू कम हो जाएगा, तो it multiplies, the same problem becomes a bigger problem. So please understand, when your emotions, your bhav can get bimar and they need to be looked after. So पहले अगर बीमार होगा तो डॉक्टर द्विवेदी ने तरीका बताया ढूंढने का कि जितनी जो इंसिडेंट है उसके बराबर का। डॉक्टर द्विवेदी, अब मैंने अपना एक स्केल बना लिया कि ये मेरा सबसे अच्छा खुशी का टाइम, ये मेरा बहुत परेशानी का टाइम, और ये जो मैं रिएक्ट कर रहा हूं ये यार उतना परेशान नहीं है, तो नाउ आई नीड हेल्प। व्हेन आई से आई नीड हेल्प, आपने कहा द ऑप्शंस आर मेडिसिन, समटाइम्स विदाउट मेडिसिन। आपके एक्सपीरियंस में, इफ आई आस्क यू रफली, मोस्टली डू यू फील मेडिसिन की जरूरत पड़ती है या मोस्टली मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, स्पेशली इन एल्डर्स? मोस्टली अगर ये पॉसिबल हो कि उस बुजुर्ग के आसपास, उस एल्डरली के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि एक डेली शेड्यूल इंप्लीमेंट कर सके। वेरी नाइस। अगर वो इम्प्लीमेंटेबल होता है तो दवा की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना दवा भी ठीक हो जाते हैं। जैसे सुबह उठा करके अंकल जी को ये टाइम से खिलाना, उनको वॉक के लिए ले जाना, उनको योगा कराना, उनको घुमाना, ये सारी चीजें अगर हो गई, उनको शाम को सेलेक्ट सिटी वॉक घुमा लाना, ये सारी चीजें हो गई, तो ज्यादातर पेशेंट्स को, ज्यादातर बुजुर्गों को दवा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई लोनली है, उसको कोई पुल आउट करने वाला साथी नहीं है, उसको कोई ले जाने वाला नहीं है, तो वहां दवा देना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हमने उनको छोड़ दिया उस कंडीशन में, तो देन ही विल स्लिप इनटू
very Sudden. sudden. I think that's very important, and I think Dr. Kalo बड़े ध्यान से सुन रही हैं, क्योंकि those elders who are under your care, Dr. Kalo, जो अकेले रह रहे हैं, if any one of your volunteers notices that he's आज तो अंकल कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं, immediate help should be sought out, especially अगर वो एल्डर अकेले रह रहे हैं, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट करना बड़ा मुश्किल है फॉर दैट पर्सन. एंड डॉक्टर द्विवेदी ने अगेन इंसिस्ट किया, जो भी आपकी सिचुएशन हो, आप देखिए जो आर्मी में लोग मिलिट्री में लड़ाई करते हैं, चाहे कोई भी बाहर हालात हो जाए, सुबह 6 बजे उनका झंडा ऊपर जरूर जाना होता है. Why is that? It is not just झंडा. It is the routine has to be maintained. कि 6 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, चाहे रात को 50 आदमी आके मर गए हैं, doesn't matter. Tomorrow morning 6 o'clock. That gives them the strength to continue to fight despite गोलियां चल रही. और आप भी एक सोल्जर हो. So every elder, or Dr. Dwivedi has said, if you are able to maintain a routine, you may be feeling upset, but it takes time. But अगर वो 3 महीने से ज्यादा चल गया, then you need expert advice. So I think that is very simply being told that न्यूरोलॉजी में भाव भी बीमार होते हैं, और भाव बीमार होने का तरीका आपको बताया है. You should share it with everybody. Dr. Dwivedi, if an elder is, मतलब unfortunately अगर वो bedridden है, एक हालात रोज ऐसी है कि वो पलंग पे ही लेटे हैं, उठ नहीं सकते, ऐसे इंसान को हालात की वजह से ज्यादा उदास होते हैं, या उनके अंदर उदासी की बीमारी अपने आप ही बढ़ जाएगी? Is it a part of getting disabled, or is it the circumstances that make him disabled? Sad. तो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो कि रियल है, जो कि डिफेंस कॉलोनी में हुई थी. ये एक बंगाली कपल था, बेटा उनका रहता था दुबई में, और मैं उस समय बड़ा यंग था, और मैं ये अभी भी हो. मैंने अपनी शुरुआत की थी, प्रैक्टिस की, और हमारे यहाँ पे प्रोफेसर बैनर्जी हुआ करते थे. यस. तो प्रोफेसर बैनर्जी ने मुझसे कहा कि देखो ये एल्डरली कपल हैं और ये डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं, मैं तुमको बोलता तो नहीं हूँ, काइंडली होम विजिट कर लोगे, इट इज एंटायरली अप टू यू. मैंने कहा सर आप बोल रहे हैं, मैं तो चला जाऊंगा. तो मैं गया उनके घर. उनके घर का मैंने नजारा देखा कि जिनको मैं देखने गया था वो व्हील चेयर पे थे, उनको कैथेटर लगा हुआ था, वाओ, और इरेक्ट बैठे हुए थे, 85 इयर्स के थे, और उनके घर में करीब 15 लोग काम कर रहे थे. तो मैंने कहा कि ये क्या है, मैंने आई वाज इम्प्रेस्ड, 15 लोग क्या? बोला ऊपर ऑफिस चलता है. वाओ. मैंने कहा किस चीज का ऑफिस चलता है? तो बोले उनके मिस्टर मिश्रा थे उनके एसोसिएट, जो कि मुझको लेने आए थे. उन्होंने कहा कि ऐसा है, इनका ये पहले यूपी गवर्नमेंट में इरिगेशन के बॉस थे, ही वाज एन इंजीनियर. नाउ WHO, UN के और वेरियस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं. लोग इनके साथ काम किया करते थे जब ये गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट में थे. हम सब भी रिटायर हो गए हैं, बट इनके नाम से काम आता है, और फिर हम सारे बैठ के तैयार करते हैं. और फिर एक ऊपर बोर्ड रूम भी था. मैंने कहा ये तो व्हील चेयर में है, लिफ्ट भी नहीं है, तो कैसे जाते हैं बोर्ड रूम में? तो बोला हम इनको लिफ्ट करके इनके चेयर को ऊपर ले जा करके बोर्ड रूम में बिठाते हैं, ही सिट्स एज ए चेयरमैन, और फिर पूरा देखते हैं 85 प्लस.
और उस 85 प्लस आदमी नॉट ओनली वाज ही प्रोडक्टिव, कोई दुख नहीं था, ही वाज वेरी इलोक्वेंट इन टेलिंग हिज प्रॉब्लम। कैथेटर लगा हुआ बंदा इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, 16 लोगों को। आप खुद तो एक्टिव है ही, 16 लोगों का एम्प्लॉयमेंट का भी सोर्स है। ब्यूटीफुल। उसके बाद उनकी वाइफ, शी वाज ए केस ऑफ टर्मिनल गैस्ट्रिक stomach cancer, stage 4, but mentally again active. You would be surprised to know that not only was he active, he was providing job for these many people. Nursing staff था जो इनको भी देखता था. और wife realized that she will not live for long. उन्होंने अपनी नर्स को अलमारी के अंदर लाल रंग की साड़ी और सारी चीजें एक जगह दिखा रही, बोली जैसे ही मैं मरूंगी ये सारी चीजें काम आएंगी, ये तुम्हें करना है। अपने मरने की भी प्लानिंग बता दी। जर्नी और कोई घर में है नहीं, इनको समझ आएगा नहीं, ये व्हीलचेयर पे ये कर देना। तो उसने अपनी डेथ भी प्लान कर ली। और जब उनकी डेथ हुई उनकी वाइफ की, वो मतलब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की अजूबे, वैसा मैंने केस नहीं देखा अपनी लाइफ में। शी हैड प्लान्ड एवरीथिंग, सो व्हेन शी पास्ड अवे देयर वाज नो chaos एट होम। एवरीबॉडी न्यू कि कैसे लास्ट राइड करनी है। बेटा यहाँ था नहीं, यही दोनों थे, और वो स्टाफ जो था वही उनकी फैमिली थी। मैं कहता हूँ दो इतने बुजुर्ग लोगों ने एक पूरा कुनबा संभाल रखा था अपने सिर्फ माइंड को, दिमाग से। अगर आप दिमाग से हेल्दी हैं तो उम्र किसी भी चीज के लिए बाधा नहीं है। Beautiful. I think that's very inspiring. And Dr. Dwivedi ne, I think I'll close with a very very old story. इनकी कहानी से मुझे भी याद आ गए। इन्होंने तो बताया कि how he was keeping it. And Dr. Kalo, that was my first interaction with an elderly person. That was very, say, nearly about 20-25 years ago. And there was a American gentleman जो आए थे और उन्होंने अशोक उनका इंडिया में आए. He was 78 years old and he had come with his wife. So I was called to see him because उनका पेशाब बंद हो गया था. तो मैंने उनको as an, और बहुत उनकी हालत बुरी थी. He was perspiring away, पसीना आ रहे थे उनको. तो वहीं पे होटल में ग्लव्स पहन के मैंने उनके वहीं पे कैथेटर डाल के I brought out about 2 liters of urine. And he was relieved, he was happy. So next day morning when I went to see him, he says, I have come, I've just got married about 2 months ago. And I've come for my honeymoon to visit the Taj Mahal with my wife. Now, can I go to the Taj? And believe me, I was so impressed by his zeal. I said, you must go to Taj. So he says, with the catheter, वो catheter नाली लगी हुई थी पेशाब की, तो वो catheter के साथ चले गए. I sent a nurse along with him. जब वापस आए 3 दिन बाद तो मैंने पूछा, how was Taj? He says, perfect. कहता सिर्फ अफसोस ये था कि I could not enjoy my honeymoon. Now imagine his spirit at 78. That was my first lesson with an elder who said, I live by my brain, not by my body. He was a senator from America and he wrote only one line. He says, why did you get surprised? A man lives with his mind and not his body. I remember that line so beautifully written. And that is what Dr. Dwivedi has just said, that agar kisi elder ne happiness or usefulness se life bitani hai, to live by your brain and not by your body. मेरा हाथ नहीं चलता, दफा करो हाथ को, दिमाग चल रहा है तो चलाओ. So I think that's the moral of the story today. All of you, please live with your brain and not your body. As long as you are living with your brain, you will live well with your body. Have a beautiful body, but don't have a brain, you're an animal. So I think, Dr. Kalo, if I have your permission, we thank Dr. Dwivedi for this wonderful interaction. And
अब हम ये नहीं कहेंगे बहुत खुश नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे उतने खुश हैं जितना उस दिन हम कुल्फी खा के हुए थे. So yeah, this is a beautiful one, and I'm going to decide tomorrow which is my happiest scale and worst scale, and I'm going to always have my analog scale. So please, all of you, we request you to have your analog scale today, and जब भी मौका लगे अपने analog scale को share करें. Unless you share it, you won't enjoy your analog scale. So thank you very much, Dr. Dwivedi, for your time. And Dr. Kalu, he's still in his OPD. I can see he's still running his OPD. Absolutely. Thank you so much, Dr. Dwivedi. It's always enlightening to listen to you, and all of us enjoy so much, and the queries are absolutely resolved the moment you you have a talk. We have no queries left in a chat box. There were so many queries, but I don't think Dr. Grewal asked any of them, but you yourself answered without even going through the chat. Most of them are all answered. I was watching all of these chats. So much. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Dwivedi. Thank you so much. Thank you so much, Right. Dr. Dwivedi. Thank you so Thank much, Dr. Grewal. Thank And you. we look forward to having such inspiring sessions every now and then. Now, next time we must have reactions from people to tell us कि मेरा analog scale कितना है. Let's compare analog scales. Yes. और जैसे डॉक्टर द्विवेदी बोल रहे थे कि हमें engaged रहना चाहिए. This Elders First festival itself, the whole crux of the whole thing is that we must be engaged. We should always be engaged. In fact, I would request if there are any sons and daughters also in this program, they should endeavor to join. They should pick up their phone right now, call up their parents, have an engaging session with them. This is what is required to keep them engaged and have. Thank you. Thank you. Good night. Thank you so Good much. night. Good night. Good night.